In today's video, we are going to learn how to fill the OMR sheets for CBSE Class 10 examination. Students, this is the most ignored but most dangerous part of writing the exam. Okay, so this is just your machine. When you fill the OMR sheet, okay, I'll tell you how to fill this OMR sheet in detail. So when you fill the OMR sheet, the machine is checking your identification. It's just for students' identification. So the machine reads it. So you have to be really careful in filling each and everything. So I'll show you how to fill this, okay, by using your admit card, okay, by taking help of a question paper and then filling the actual OMR sheet for your CBSE Class 10. So let's begin. Now before beginning, let me tell you the first and very important rule is you have to fill the OMR sheet with blue or black ballpoint pen, no pencil, no gel pen, no overwriting. And also it's not a speed test, so you have to fill it calmly. You have to take some long deep breaths and fill it calmly, because if this goes wrong, if anything goes wrong in your OMR sheet, your answer may not be evaluated correctly, your marks can go to someone else and many things can happen, okay? And this is given only once, so you have to fill it really carefully. Now how to practice this, I would suggest you to practice this. So there are many these downloadable PDFs available on the internet for CBSE Class 10 and Class 12. So I would suggest you download them and practice 2 to 3 times before actually appearing for the exam. So let's begin. Let me show you how to do this. सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है. So here you have to first, so this is just a sample question paper from EduCart. तो यहाँ सबसे पहले हम subject fill कर लेते हैं. Now suppose you have this question paper, okay, the subject is science. ओके ये इस तरीके का आपका क्वेश्चन पेपर होगा, ये देखिए, है ना, साइंस सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर है, ओके, जिस पे सेट लिखा हुआ है और क्वेश्चन पेपर का कोड लिखा हुआ है, ये आपको नोट करना है. दिस इज सब्जेक्ट, सो वी विल फिल साइंस. सो फॉर सीइंग द सब्जेक्ट कोड, जस्ट गो टू योर एडमिट कार्ड. यहाँ देखिए साइंस का सब्जेक्ट कोड है 086, ओके. So you have to write 086 here. Now day and date of examination, आपको एग्जाम में day and date of examination दे रखा होगा. डेट आपके एडमिट कार्ड में भी डेट है और आपको बोर्ड पे टीचर भी लिख लेगी day and date. Now suppose the day is Monday, for example. I'm just using. Okay, so you have to write Monday and then date is 25/02/2026. Okay, you have to fill it in the box. Now, so bring it a little closer. Now, medium of answering the paper is English. So write English. Okay. अब देखिए यहाँ जब मैंने डेट लिखी तो डेट की यहाँ जगह खत्म हो गई. तो आपको पहले से प्रैक्टिस करना है कि ये थोड़ा अंदर की तरफ लिखना है ताकि आप यहाँ पूरी डेट लिख सके. बट अगर ऐसा हो भी जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज योर सब्जेक्ट कोड एंड व्हाट यू फिल हियर, दिस पार्ट. ओके, नाउ लेट्स सी हियर कोड नंबर. ठीक है, तो क्या कोड नंबर है? तो यहाँ आप क्वेश्चन पेपर में देखेंगे, क्वेश्चन पेपर के यहाँ ऊपर कॉर्नर पे लिखा होगा क्वेश्चन पेपर कोड. ओके, सो यही कोड आपको यहाँ पे लिखना है जिस तरीके से दे रखा है, एग्जैक्टली वैसा ही. देन योर सेट नंबर, इफ यू सी सेट नंबर हियर इज 1 2 3 4 ऐसा लिख रखा है और आपको सेट 2 मिला है, राइट. तो आप इस सेट 2 को अच्छे से फिल करेंगे. नाउ हाउ यू विल फिल इज, पहले आप इसको अच्छे से सर्कल बना दे ताकि कुछ भी पार्ट लेफ्ट आउट ना हो, और फिर इसे घिस के अच्छे से 2 को कंप्लीटली फिल करना है. ठीक है, यू डोंट हैव टू मेक अ स्मॉल मार्क और इसको बाहर भी नहीं आने देना है, इसको अच्छे से फिल कर लेना है. ठीक है, कंप्लीटली फिल्ड. नाउ नंबर ऑफ सप्लीमेंट्री आंसर बुक यूज, अगर आपने कोई सप्लीमेंट्री आंसर बुक यूज की है तो उसका लिखना है, नहीं यूज की है तो इसे खाली छोड़ना है. पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, तो आपकी कोई डिसेबिलिटी है तो यस लिखो, नहीं है तो नो लिखो. यू कैन फिल हियर नो
इफ यू डोंट हैव। कोड ऑफ डिसेबिलिटीज एज पर द एडमिट कार्ड, अगर डिसेबिलिटी होगी तो उनके एडमिट कार्ड में कोड दिया होगा, वो यहाँ फिल करना है। अगर नहीं है आपकी तो आप इसे खाली भी छोड़ सकते हैं, या क्रॉस भी लगा सकते हैं, या नॉट एप्लीकेबल भी लिख सकते हैं। ठीक है, NA। नाउ वेदर राइटर इज प्रोवाइडेड टू यू, येस और नो। सो इफ यू आर प्रोवाइडेड विथ राइटर, राइट येस, अदरवाइज पुट अ नो। इफ विजुअली चैलेंज्ड, नेम ऑफ द सॉफ्टवेयर यूज, अगर आप विजुअली चैलेंज और आप कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं तो यहाँ लिखना है। अदरवाइज आप नॉट एप्लीकेबल लिख सकते हैं यहाँ पे, या क्रॉस लगा सकते हैं, खाली भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, ये ऑफिस यूज के लिए है नीचे का पार्ट। अब हम यहाँ आ जाते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं मिनिमाइज कर लेती हूँ। अब यहाँ पूछा है नेम, कैंडिडेट्स नेम इन कैपिटल लेटर्स। तो जैसा आपके एडमिट कार्ड में नेम है वैसा ही वो ही नेम आपको लिखना है। ठीक है, एडमिट कार्ड का नेम। तो आप देखेंगे यहाँ पे कैंडिडेट्स नेम है, तो जैसा नेम है वो ही नेम यहाँ लिखना है। सो आई एम फिलिंग इट फॉर माई डॉटर, सो इट इज इरम जयपुरी। सो फर्स्ट आई विल राइट IRAM, आई विल लीव अ स्पेस, देन केयरफुली इन बिटवीन द बॉक्स आई हैव टू फिल। ओके, अब आप ध्यान से देखिए, फर्स्ट लेटर इज I, तो आपको सिर्फ इस फर्स्ट रो में जाके देखना है कि I कहाँ है। ओके, उस I को अच्छे से सर्कल करके उसे डार्क घिस के आपको I मार्क करना है। देन R। नाउ स्टूडेंट्स, यू हैव टू बी रियली केयरफुल, इट इज नॉट अ रेस, टाइम बाउंड नहीं है, आपको बहुत टाइम मिलता है, इसलिए घबराएंगे नहीं, अच्छे से फिल करेंगे, एक एक वर्ड को हर बार चेक करके। ओके, यहाँ R है तो आपको वैसे लिखना है। ठीक है, आपको 2 बार ये आंसर शीट नहीं मिलेगी, एक ही बार मिलेगी। यू डोंट हैव टू गो रॉन्ग। तो कोई भी घबराने की बात नहीं है, बहुत टाइम होता है, पेशेंटली आप इसे करेंगे। डीप ब्रीदिंग करके आप स्टार्ट कीजिए ताकि आप बिल्कुल भी रॉन्ग ना हो। फिर M, यू कैन यूज अ स्केल इफ यू वांट, कि कहीं हम और कहीं ना चले जाए। तो M की लाइन देखिए, ये वाली लाइन है। ठीक है, यू कैन यूज अ स्केल और पेंसिल और समथिंग। ओके, M की लाइन ये है, तो यहाँ वाले में ही हमें M को फिल करना है। आप पहले मार्क कर लीजिए, ऐसे टिक छोटा सा मार्क कर लीजिए, एक बार फिर से चेक कर लीजिए, हाँ M की ही लाइन में है, और फिर आप इसको फिल करेंगे। ठीक है, आप इसे अच्छे से फिल कर दीजिए। फिर आप देखिए J कौन सी लाइन में है, ये ही लाइन में है, आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। आप J देखिए, यहाँ है, एक पहले छोटा सा टिक करके देख लीजिए, हाँ यही लाइन में है ना, मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं की है, और फिर इसे ऐसे फिल कर दीजिए। ओके, सो सिमिलरली यू विल फिल एवरीथिंग, फुल नेम। नाउ यू सी योर रोल नंबर हियर। अगेन आप रोल नंबर याद कर ले तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन फिर से आप यहाँ अच्छे से रोल नंबर देखेंगे और फिर उस रोल नंबर को कॉपी करेंगे यहाँ, और फिर उसको भी इसी तरीके से फिल करना है। यहाँ पे 1 इस तरफ है, इसे अच्छे से फिल कर दीजिए। ये बच्चों पहले से अच्छी खासी प्रैक्टिस करके जाइए ताकि वहाँ आपका हाथ ना काम पे, आप अच्छे से कर पाए। और बिल्कुल डरने की बात नहीं है, बहुत इजी है, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस। अच्छे से वीडियो को एंड तक देख के समझ लीजिए कि क्या है। ओके, 0 सबसे नीचे है बेटा, ध्यान रखना, 0 ऊपर नहीं है। 1 से स्टार्ट होके 0 पे एंड हो रहा है। And don't be in a hurry, don't think other things when you are filling it. बाहर नहीं आने देना है इसे, एकदम अच्छे से पहले सर्कल बना दीजिए और फिर उसे फिल कर दीजिए। ठीक है, नाउ यू हैव सब्जेक्ट कोड एंड सेंटर नंबर। ओके, सो अगेन इट इज देयर इन योर एडमिट कार्ड। यहाँ पे देखिए कॉर्नर पे आपको दे रखा हो सेंटर नंबर। स्कूल नंबर और सेंटर नंबर है, आपको सेंटर नंबर लिखना है। ठीक है, सो सेंटर नंबर इज 810719 फॉर माई डॉटर। अकॉर्डिंगली यू विल फिल। नाउ सब्जेक्ट कोड, सिंस आई एम फिलिंग फॉर साइंस, सो इट इज 086। दिस इज ऑल्सो देयर इन योर admit card. Okay, subject code, here you can see the different subject codes. So you see the subject code and then fill. अब यहाँ 086 है, देखिए बच्चों, 08 and then 6।
अक्सर सब्जेक्ट कोड के यहाँ अगर 1 से लेकर 9 तक ही है, नीचे नहीं है, आप देखिए, ठीक है, तो उसको छोड़ देना है क्योंकि ये तो 0 ही है ना। 8 और 6 है आपका नंबर, ठीक है। यूजुअली यहाँ नीचे 0 दे रखा होगा और ऐसे दे रखा होगा, उसको फिल करना है आपको, ठीक है। नाउ सेंटर नंबर ऑल्सो अकॉर्डिंगली आपने लिख लिया है ऊपर, एक बार डबल चेक करके फिर इसे स्केल के हेल्प से फिल कर दीजिए, ठीक है। इसे भी आपको फिल करना है। अब यहाँ नीचे देखिए, हियर यू हैव बीन आस्क्ड सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट जैसे इसमें लिख रखा है आपके एडमिट कार्ड में उसी तरीके से लिखना है। अगर मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड है, ओके, तो आपको मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड लिखना है। जैसे ये इंट्रोडक्शन टू टूरिज्म है तो सिर्फ टूरिज्म नहीं लिखोगे, आप पूरा लिखोगे। सोशल साइंस जिस तरीके से जैसा लिख रखा है यहाँ वैसे ही लिखना है। तो हमारा अभी साइंस है तो हम सिर्फ साइंस लिख लेंगे यहाँ, ठीक है ना। स्कूल नंबर एज पर एडमिट कार्ड, मैंने आपको बताया था यहाँ ऊपर की तरफ स्कूल नंबर है, ये देखिए स्कूल नंबर इज हियर 10505 फॉर एग्जाम्पल। सो आई विल फिल हियर 10505। नाउ रोल नंबर इन वर्ड्स, तो आप रोल नंबर देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ड्स में भी 1,12,39,000 एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ से वर्ड्स में भी रोल नंबर लिख सकते हैं। हियर यू हैव गिवन फादर्स और गार्डियंस नेम, तो जिस तरीके से फादर्स नेम और गार्डियंस नेम आपकी एडमिट कार्ड में लिखा है आपको चेक करना है। अक्सर क्या होता है, हमें पता है फादर्स नेम हम फटाफट लिख लेते हैं, लेकिन बीच में कुछ लिखा होता है। जैसे यहाँ है इरफान जयपुरी, कभी कभी इरफान बी जयपुरी जैसे बीच में है, तो जो भी यहाँ लिखा है एग्जैक्टली आपको यहाँ पे इसको फिल करना है, ओके। एंड देन हियर यू हैव टू साइन, आपका जो भी साइन है आप यहाँ साइन कीजिए अच्छे से क्लियरली, जैसे आपने एडमिट कार्ड में साइन किया है वही वाला साइन आप यहाँ करेंगे। ये एग्जामिनर को लिखने के लिए है। मेरा नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलना, क्योंकि वहाँ मैं आपको बताऊंगी कि ये जो अंदर चीज़ें फिल करनी है ना, मार्जिन के को कैसे यूज़ करना है, इस मार्जिन को छोड़ देना है, रफ कॉलम कहाँ बनाना है और एग्जामिनर कैसे मार्क्स देते हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, ओके। नाउ ये जो OMR शीट ही आपको बननी है, इसके बाद वाला एक और होता है, ठीक है, वो आपको फिलहाल नहीं भरना है, ये सब एग्जामिनर भरेंगे। यहाँ पे सिर्फ टू बी फिल्ड बाय द स्टूडेंट सिर्फ इतना पार्ट होता है, ठीक है, इसे आपको फिल करना है, ठीक है। स्टूडेंट शुड राइट कोड नंबर एज रिटन ऑन द टॉप ऑफ द क्वेश्चन पेपर इन द बॉक्स प्रोवाइडेड, ओके। तो यहाँ जो क्वेश्चन पेपर के ऊपर जो कोड लिखा होता है ये यहाँ पे आपको लिखना है। अगर सप्लीमेंट ली है तो यहाँ रोल नंबर, यहाँ रोल नंबर इन लेटर्स, यहाँ आपकी क्लास, सब्जेक्ट कोड, सब्जेक्ट नेम, मीडियम ऑफ आंसरिंग दैट इज इंग्लिश, डे ऑफ एग्जामिनेशन, डेट ऑफ एग्जामिनेशन एंड योर सिग्नेचर, ओके। समटाइम्स दिस पार्ट इज नॉट देयर टू बी फिल्ड, है ना, सिर्फ OMR शीट ही होती है, तो आपको सिर्फ वो ही फिल करनी है।